आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। ये मैं पहले बता दूं सभी बच्चों को, ये दोनों मीडियम में वर्कशीट होगी, हिंदी और इंग्लिश। पहले हम इंग्लिश की करते हैं, फिर हिंदी की करेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दिस इज योर थर्ड चैप्टर एंड यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, copper. They can be classified as metal and non-metal on the basis of their properties. So you have studied earlier that the metals have the property of there are few physical properties and few chemical properties which differentiate them from the non-metals. So first of all, we will list some symbols or name of some metals and non-metals as follows, like this. You have to remember all these metals and non-metals. First one is iron, its symbol is Fe and it's a metal. Calcium, Ca, it's a metal. Gold, Au, it's a metal. Aluminium, Al, it's a metal. So similarly you have to remember this table and write it in your notebook as well. There are few non-metals like carbon, its symbol is C. Phosphorus, P. Hydrogen, H. Helium, He. Nitrogen, N. Sulfur, S. Oxygen, O. Iodine, I. Bromine, Br. Neon, Ne. So it's very important to remember these metals and non-metals and note down these names in your notebook also. So on the basis of the worksheet you can do the practice of these questions. First question, give the symbols of the following elements, like bromine, its symbol is Br. Calcium, its symbol is Ca. Nitrogen, N. Lead, Pb. Silver, Ag. So you have to write the symbol of these elements. Now in the second question you have to identify the following elements from this symbol. It is reverse of the first question. For example, Fe, it is the symbol of iron. Hg, symbol of mercury. Au, symbol of gold. O, symbol of oxygen. Cu, symbol of copper. Similarly, classify the following elements as metal and non-metal. That you have studied about metal and non-metal, and there are few metal and non-metal in the table above. Coal, coal is coal is the form of carbon, and carbon is a non-metal, so it is non-metal. Iodine is also non-metal. Mercury is a metal. Lithium is a metal. Bromine is a non-metal. So in this way you have to classify all these metals and non-metals. Now the worksheet for the Hindi medium students. तो आज की जो वर्कशीट है वो है धातु एवं अधातु, और इसमें कुछ धातुओं के नामों से आप परिचित होंगे, जैसे आयरन लोहा, एल्यूमिनियम कॉपर जिसको हम तांबा भी बोलते हैं, और उनके बहुत सारे भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। और आज हम कुछ धातुओं और अधातुओं के नाम और उनके संकेत के बारे में बात करेंगे कि उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके सिंबल्स क्या हैं। तो सबसे पहले लोहा है जिसको हम आयरन बोलते हैं इंग्लिश में, और Fe उसका संकेत है, सिंबल है। कैल्शियम का सिंबल है Ca। Au गोल्ड का है, सोना। एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, लिथियम Li, पोटाशियम K, मरकरी पारा जिसको बोला जाता है जो थर्मामीटर में होता है Hg, लेड सीसा जो होता है Pb, सिल्वर चांदी जिसके आभूषण बनाए जाते हैं वो है Ag। तो ये सभी धातुएं हैं जो आपको याद करनी है और कॉपी में नोट भी करना है। नेक्स्ट आता है अधातु। ये धातु है धातु, जैसे कार्बन जिसका सिंबल है C, फास्फोरस P, हाइड्रोजन H, हीलियम He, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, ब्रोमीन Br, नियोन Ne। सो ये था आपका धातु और धातु में पहचान। अब इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे हैं कि किसी भी चीज़ को समराइज करते हैं तो क्वेश्चन बेस पे हमें उसको हम पता लगा सकते हैं कि हमने क्या सीखा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखे, मतलब आपको यहाँ पे सिंबल लिखना है। जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का सिंबल है Br, कैल्शियम का सिंबल है Ca, नाइट्रोजन का सिंबल है N, लेड का सिंबल है Pb, चांदी का सिंबल है Ag।
अगर आपको सिंबल दे रखे, तत्वों के संकेत दे रखे, तो उनके नाम लिखने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में, जैसे Fe है, ये आयरन है। Hg है, ये मरकरी या पारा जिसको हम कहते हैं। Au सोना है, गोल्ड। O ऑक्सीजन है। Cu कॉपर है। तो इस तरीके से इनके नाम देने हैं आपको। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित धातुओं को, तत्वों को धातु या धातु में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कौन सी धातु और कौन सी अधातु है। जैसे कोयला है, कार्बन का रूप होता है, तो कोयला अधातु है। आयोडीन अधातु है। मरकरी धातु है। लिथियम धातु है। ब्रोमीन अधातु है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से शीट समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस को करें और याद भी करें साथ साथ। कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान। थैंक यू सो मच।